Now we will continue with the procedure of hypothesis testing. So first of all, we will set the null hypothesis. So we have already discussed what is null hypothesis. Null hypothesis is the hypothesis of no difference. और with the help of हम क्या null hypothesis हम क्या चेक करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं there is no significant difference between sample statistic and population parameter. ये हमारा null hypothesis होगा, ठीक है. For example, suppose if I want to check कि the population mean is mu naught. So here you will write H naught is the population mean is equal to mu naught. एक तो ये लिख लोगे, or you will write there is no significant difference between. अब इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? सैंपल मीन से. ऑन द बिहाफ ऑफ द सैंपल मीन वी हैव टू टेस्ट द पॉपुलेशन मीन. सो you can set the null hypothesis in two ways. Either you can write the population mean is equal to mu naught, or there is no significant difference. ये word बहुत important है, significant difference between sample mean and population. There is no significant difference between, यानी population mean और sample mean में कोई ज्यादा difference नहीं है, उनका difference significant नहीं है, important नहीं है. तो इस केस में alternative क्या आ जाएगा? What will be the alternative? So alternative will be तो population mean अगर सिर्फ एक हमने लेना है that is not equal to mu naught. और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखा there is no significant difference और यहाँ पे और करके लिखेंगे there is a significant difference. So बेटा you may write here there is a significant difference. I'm stating you will write there is a significant difference between sample mean and population. It means estimated value. Sample mean जो है this is called the estimated value of the population mean. ठीक है जी. We can write here expected of x bar is equal to population mean. So we can say that the average value of the sample mean is equal to population mean. So estimated जो value है वो sample mean नहीं है, that is the population mean. So there is a significant difference between the sample mean or population mean, right? So जब नल हाइपोथेसिस सेट हो गया उसके बाद हमने सेट कर दिया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. दिस वाज द नंबर 2. अब ऑल्टरनेटिव में जब हमने ऑल्टरनेटिव सेट किया H1, यू विल राइट हियर और सेट अप द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1. सो इसमें कल 3 केस बताए थे. यू विल राइट हियर पॉपुलेशन मीन. यू विल राइट हियर पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू mu naught. That is there is a significant difference between sample mean and population mean. There is a significant difference between sample mean and population, right? So और जब नॉट इक्वल टू है इसको कहते हैं टू टेल्ड. ब्रैकेट में लिखेंगे आप टू टेल्ड ऑल्टरनेटिव. क्योंकि जब हम कहते हैं ना ए बी के बराबर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी आ गई, या ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा. तो इसका मतलब H1 में दो पॉसिबिलिटी आ गई कि आइदर पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन म्यू नॉट और लेस देन म्यू नॉट. सो इसको कहते हैं टू टेल्ड ऑल्टरनेटिव. फिर हम लेंगे पॉपुलेशन मीन ग्रेटर देन म्यू नॉट. ये भी हो सकता है.
दैट इज, इसको कहेंगे राइट टेल्ड ऑल्टरनेटिव, राइट। और ये सारे इकट्ठे नहीं सेट होने बेटा, इनमें से या ये होगा या ये होगा या ये होगा, या नॉट इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस होगा। So suppose here we are taking population mean less than mu naught. So this is a left-tailed alternative. So इससे पता चलेगा कि हमने टेस्ट कौन सा लगाना है। अगर हमारा ऑल्टरनेटिव टू टेल्ड आ रहा है तो हमने जो टेबल वैल्यू देखनी है वो टू टेल्ड टेस्ट की देखनी है। अगर हमारा ऑल्टरनेटिव राइट टेल्ड आ रहा है तो हमने राइट टेल टेस्ट की वैल्यूज देखनी है। एंड इफ वी हैव लेफ्ट टेल टेस्ट तो हमने लेफ्ट टेल टेस्ट की वैल्यूज देखनी। इज इट क्लियर? सो दिस विल वेरी इन ऑल, ये काई स्क्वायर, टी टेस्ट, एफ सेट और सब में बेटा दिस विल वेरी। So now, so this is the concept of alternative hypothesis and null hypothesis. Now the third is set up the level of significance. So now the question is, what is the level of significance? जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं ना तो सैम्पलिंग एग्जैक्ट नहीं होती है, वो एक एस्टिमेशन, वो एक एस्टिमेट देता है पॉपुलेशन का, ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो किसकी प्रोवाइड करता है? पॉपुलेशन की प्रोवाइड करता है। तो जब भी सैम्पलिंग करते हैं कोई ना कोई एरर की पॉसिबिलिटी रह जाती है, तो वो जो एरर आता है सैम्पलिंग में, दिस इज द एरर ऑफ सैम्पलिंग, इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड बाय अल्फा, एंड अल्फा इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, it is the probability of critical region. So alpha is the probability of critical. अब नया शब्द आ गया इसमें भी, ये critical region क्या है? So critical region वो region है, critical region is that region in which null hypothesis is rejected when it is true. क्रिटिकल रीजन वो रीजन है जहां पे नल हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। हमने क्या माना था पीछे? हमने माना था पॉपुलेशन मीन कितना है, म्यू नॉट है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस था, ठीक है। मैंने टेस्ट लगाया, टेस्ट के बाद कंपैरिजन हुआ टेबल वैल्यूज के साथ और कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ, तो हमारा आ गया नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। When it is true, इसका क्या मतलब? हम मान के क्या चले थे कि ये होल्ड हो रहा है। नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था कि पॉपुलेशन मीन इतना है, फिर भी हम उसको चेक कर रहे हैं। हमने मान लिया कि कितना है, म्यू नॉट है। सो इट इज द रीजन इन विच नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू, राइट। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो प्री डिफाइंड होता है, ये हम लेते हैं 5% और 1%, ठीक है जी। बहुत किसी केसेस में 10% भी ले सकते हैं क्योंकि इनकी टेबल वैल्यूज आपको पीछे मिल जाएंगे। सो अल्फा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो 5% का मतलब क्या हुआ? अल्फा इज इक्वल टू 5% मतलब 0.05, ठीक है जी। If you are taking alpha is equal to 1%, it means this is 0.01. So if alpha is equal to 10%, it implies this is 0.1. So before applying any test, we have to define कि हमने level of significance कितना लेना है। मतलब it is the probability of rejecting the null hypothesis when it is true. ये इसके बिना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। और ये क्या बताता है? क्योंकि सैम्पलिंग में एरर की पॉसिबिलिटी आती है,
है, ठीक है जी। अब एरर हमने ये 100% है, पूरा 100% सैम्पलिंग हुई, ठीक है जी। और हमने क्या किया, हमने इतना एरर सोच के चला भी, इतना एरर तो सैम्पलिंग करते करते पॉसिबिलिटी हो सकती है, आ सकता है। सो दिस इज this must be choose before calculating the step. अब सपोज करो, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज करो हमने घड़े बनवाने हैं, ठीक है जी। आप जो है गए हो कि आप घड़े बना दो हमारे, आपने 100 घड़े बनवाने, ठीक है। अब बेटा घड़े बनाते बनाते वो जो जिसने बनाने हैं टूट भी तो सकते हैं कि नहीं? इज इट पॉसिबल और नॉट? इट इज पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई ना कोई एरर की पॉसिबिलिटी है। तो जो मैंने कहा भी, अगर 5 घड़े टूटते हैं, देन आई विल नॉट आई विल डू द कंप्लीट पेमेंट, ठीक है। मैंने कहा अगर 5 घड़े टूट जाएंगे तो मैं पूरी पेमेंट करूंगा, अगर इससे ज्यादा टूट जाएंगे तो फिर पेमेंट नहीं होगी। तो उसमें एरर कितना, हम कितनी पॉसिबिलिटी लेके चले, 100 में से 5 मतलब 5% लेके चले, और 95% पॉसिबिलिटी है कि घड़े नहीं टूटेंगे। सो एरर, सैम्पलिंग बिना एरर के नहीं हो सकती, राइट। सो आगे, आफ्टर सेटिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, अब मैंने कहा भी अगर बेटा ये टूट जाएंगे, अगर ये टूट जाते हैं तो इट मींस आई विल नॉट, 5 से ज्यादा अगर टूटेंगे तो इसका मतलब आई विल नॉट गिव यू द कंप्लीट पेमेंट। तो अगर 5 टूटते हैं देन आई विल गिव यू द कंप्लीट। तो ये रिस्क में आता है। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? रिस्क होता है, ठीक है। इट इज द रिस्क, so you can write it is the risk of concluding alpha, आप यहाँ पे लिख लो, alpha is equal to 5% is the risk of concluding that a difference exists when there is no actual difference. So, इसको मैं नल हाइपोथेसिस के साथ कोरिलेट करती हूँ, तो सिर्फ एक जनरल आपको एग्जांपल दिया कि अगर अल्फा 5% चूज कर रहे हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ एरर, इट इज अ रिस्क ऑफ कंक्लूडिंग दैट अ डिफरेंस एग्जिस्ट when there is no actual difference. हमने h नॉट सेट किया म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, यानी यहाँ पे डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो डिफरेंस एग्जिस्ट, ठीक है जी। या हमने कहा, देखो नल हाइपोथेसिस दो तरह से भी सेट किया, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू म्यू नॉट, और देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between sample mean and population, ठीक है जी। तो अल्फा 5% क्या इंडिकेट करता है? इस रिस्क को इंडिकेट करता है कि दोनों में डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। सो इट इंडिकेट्स दैट, it indicates a risk concluding that there is a difference, ठीक है जी। डिफरेंस बेटा सिर्फ मैं यहाँ पे मीन क्यों ले रही हूँ, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले सकते हैं, वेरिएंस भी ले सकते हैं। सो वो टेस्ट टू टेस्ट जो है वो वेरी करेगा। सो दिस 5% level of significance, which is a risk, which is an error, which concludes that there is a difference between sample mean and population, right? और कब? When we assume that it is true, even when we assume that it is true, हम मान के क्या चले हैं कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये जो 5% एरर है ये बताएगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस फिर भी एग्जिस्ट करता है। इज इट क्लियर? सो अल्फा आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, देखो
probability of rejecting of null hypothesis. रिजेक्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब हुआ? तन्वी, बेटा don't switch on your video. Don't switch on the video. Just tell me what is the null hypothesis and what is the rejecting of null hypothesis? मैम नल हाइपोथेसिस मतलब उसकी न्यू की वैल्यू बिल्कुल उसके इक्वल होगी। रिजेक्टिंग मतलब हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको इक्वल नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल रिजेक्ट कर दे रहे हैं। मैंने दो तरह से नल हाइपोथेसिस बताया। एक तो एग्जांपल दिया ना बेटा, देखो जो जनरल जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वो पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू म्यू नॉट है। अगर हम उसको जनरलाइज करें तो वो ये है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमारा स्टैटिस्टिक्स कौन है? कल हमने बात की थी, दो तरह के टर्म्स होती हैं, एक स्टैटिस्टिक होता है, एक पैरामीटर होता है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे एक्स बार है, यहाँ पे क्या है? म्यू है। सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर मैं ये वर्ड लिख दूं रिजेक्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैम वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। हाँ, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सिग्निफिकेंट है। व्हेन इट इज ट्रू, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। सो ऐसे इस जितना भी एरिया इसके अंडर आएगा तो वो कौन है? वो अल्फा है। मैं नॉर्मल में बताती हूँ आपको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है बेटा, फाइन, थैंक यू। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में when we are talking about the critical region, so you know the graph of it is a bell shaped curve. Just a minute. Yes. So minus infinity to infinity, here z is equal to 0. अल्फा आपको बता रही हूँ ये है, ये दोनों तरफ भी हो सकता है, ये एक तरफ भी हो सकता है, ये दोनों तरफ भी हो सकता है। तो सपोज करो हम एक साइड पे ले रहे हैं, तो ये कौन सा रीजन है? ये क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। क्रिटिकल रीजन कौन सा है? जहां पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, इसको हम लिखते हैं रीजन ऑफ रिजेक्शन। तो बाकी सारा क्या बना? रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है जी। तो हम 5% ये सोच के चल रहे हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर कर्व अल्फा, दिस इज 0.05। So alpha, it is the probability of rejecting null hypothesis when null hypothesis is true. So अगर हम बात करें, so alpha, it is the probability of the critical region x belongs to w under h naught. ये फॉर्मूला होता है स्टैटिस्टिक्स में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। So what does it mean? It means आपके पास सपोज करो ये जनरलाइज कर रही हूँ, दिस इज नॉट अबाउट नॉर्मल। ये एक पूरी सैंपल स्पेस है, ठीक है, उसमें एक ये एरिया है जिसका नाम है क्रिटिकल रीजन, ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे ये अगर ये W है तो ये सारा क्या हो गया? W कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो X कहाँ पे आ रहा है मेरा? X यहाँ पे आ रहा है, X उस रीजन में आ रहा है और किसके किसके अंडर? अंडर H नॉट। H नॉट क्या लेके चल रहे हैं? नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो ऐसा एरिया जहां पे null hypothesis reject हो जाए, when we assume that it is true, that area comes under level of significance, that is called the level of significance. So जब भी पूछा जाए आपको what is alpha, so alpha is the probability of the critical region, that is it is the probability of rejecting of null hypothesis when it is true, right? So this is all about level of significance.
सपोज करो किसी क्वेश्चन में उन्होंने कहा टेस्ट एट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, टेस्ट एट अ सिग्निफिकेंस ऑफ 1%, test at a significance of 10%. So alpha you will take 5%, 1% और alpha 10%. अगर कुछ भी नहीं लिखा, test at a level of test this check the significance of this result, तो you can take, हम particularly in general हम अल्फा कितना लेके चलते हैं, जब कोई भी हमें particular नहीं दिया then we will take alpha is equal to 5%. Is it clear? So the first step was to set up the null hypothesis, that is there is no significant difference between the sample statistic and the population parameter. दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हम estimate कर रहे हैं population को on the basis of sample. Then we will set up the alternative hypothesis which states that there is a significant difference. Then we will take the level of significance which shows the risk of rejecting null hypothesis when null hypothesis is true. And next is the test statistic. So that will vary according to what test we are doing. We are doing Z test, we are doing T test, we are doing F test और we are doing chi-square test. ये वैल्यू जो है जब हम Z टेस्ट की बात करेंगे तो इसका Z is equal to आएगा. When I will talk about T test तो T is equal to में फॉर्मूला आएगा. Then F is equal to, then chi-square is equal to. इसमें से ये है large sample test. This is a large sample test. ये दोनों है small sample test. और लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए n की वैल्यू 30 या 30 से ज्यादा होगी. स्मॉल सैंपल टेस्ट में n की वैल्यू लेस देन 30 होगी. काई स्क्वायर में जो हम n लेते हैं वो काई स्क्वायर ना स्मॉल में आता है ना बहुत लार्ज में आता है. So particularly this is a large sample test and this is a small sample test, and we already know that these t test follows normal distribution. ठीक है, as n tends to infinity. We have already done this, follows normal distribution, this is distribution as n tends to infinity. तो जब हम टेबल वैल्यू पीछे देखेंगे, क्योंकि बेटा ये टी टेस्ट और एफ टेस्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंडेंट है, तो पीछे when we will see the tables, तो टेबल्स जो है वो 29-30 तक दिए हैं, उसके आगे नहीं दिए. और अगर जब आप क्वेश्चन टी टेस्ट का कर रहे हैं, एफ टेस्ट का कर रहे हैं, लेकिन आपकी वैल्यू एन की जो है वो 30 से ज्यादा हो गई, तो उस पे हम टी और एफ का टेबल नहीं देखेंगे, फिर हम जेड का टेबल, टी टेस्ट अप्लाई करेंगे लेकिन टेबल किसका देखेंगे? जेड का देखेंगे. इज इट क्लियर? So you have to remember Z test is a small sample, is a large sample test, and T and F are the small sample test. So after that, after calculating, so ये जो Z, T, F आप कैलकुलेट करेंगे, जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लगाएंगे, इसका नाम क्या है? टेस्ट स्टेटिस्टिक. और काई स्क्वायर. ये एक जनरल आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि सारे के सारे टेस्ट में एक ही प्रोसीजर फॉलो होना है, राइट? सिर्फ ये वेरी करेगा और टेबल वैल्यू वेरी करेगी. सो जेड, टी एंड एफ, ये जो स्टेटिस्टिक्स इसको कहते हैं, जो भी आप कैलकुलेट इसको कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड, टी, एफ और काई स्क्वायर. ठीक है, जो टेबल वैल्यू है, टेबल वैल्यू और सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये सारे नाम हैं. और क्रिटिकल वैल्यू, और क्या है? क्रिटिकल वैल्यू. इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, जेड अल्फा, टी अल्फा विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एफ अल्फा एट n1 n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर अल्फा एट n1 n1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है जी, इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं होती,
सिर्फ एक सैंपल है जिसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यूज नहीं करते, दैट इज अ लार्ज सैंपल। सो इसका अल्फा, अगर आप अल्फा चूज करते हो 5%, तो अल्फा आ गया 0.05। इट मीन्स यू आर चेकिंग द value of, this is the calculated value of z at 5% level of significance। ठीक है जी। सपोज करो आप अल्फा यहाँ भी 0.0 और सपोज करो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप 12 लेते हैं, then this is the critical value, significant value or tabulated value of t at 5% level of significance and for 12 degrees of freedom. Here if you are taking 0.05 and degrees of freedom are 7 and 9, so isko kahenge the tabulated value, significant value or value of f at 5% level of significance and for 7 and 9 degrees of freedom. If you are taking here 10 and alpha is again 0.05, so this is the critical value of chi-square at 10 degrees of freedom, right? So this is all about the procedure, and the last step that we are left with the conclusion. So we will compare the calculated value with the tabulated value, right? So we will continue the last step tomorrow. I hope the point is clear to all.